Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। Our Lord Jesus Christ is alive forever. हमारा यीशु मसीह जिंदा है सदा के लिए। हालेलुया। He is the same unchanging Jesus. वो ऐसा यीशु है जो कभी नहीं बदलता So है। today also he is performing the same miracle when he was in this earth. और आज भी वो वैसे ही चमत्कार करता है जब वो इस धरती पे था, वैसे ही होगा। So allow the resurrection power in your life more and more. होने दे कि वो जी उठने की सामर्थ आपके जीवन में बहुत तायत से काम करे। Because he want to resurrect your mind. क्योंकि वो चाहता है कि आपके दिमाग को वो उठा ले, जी He, उठा ले। he want to change your heart. आपके दिल को वो बदल देना चाहता He है। want to change your thought. आपकी सोच को बदल देना चाहता He है। want to change your thinking. आपकी जिस तरह से आप समझते हैं, सोचते हैं, उसको बदल देना So चाहता he है। want to resurrect you. वो आपको जी उठाना चाहता So है। he want to set you on high. वो आपको ऊंचे से उठाना चाहता है। So your prayer life is going to be increased. और इस तरह से आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़ जाएगा। Your Bible reading time is going to be increased. बाइबल पढ़ने का समय बढ़ जाएगा। So he want to resurrect your spiritual life. वो आपकी आत्मा के जीवन को जी उठाना चाहता है। So how much you are going to be strong in your spiritual life. और जितना आप समर्थी होंगे अपनी आत्मा के जीवन में, The God's blessings will flow in your life in a unique way. और उसी के कारण परमेश्वर की आशीषें आपके जीवनों से बह निकलेंगी। So all of us we know God raised from the dead. हम सब ये जानते हैं कि यीशु मुर्दों से जी उठा। So how he raised from the dead? वो कैसे हुआ कि वो मुर्दों से जी उठा? So that is very important. और ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। So Jesus Christ raised from the dead. यीशु मुर्दों से जी उठा। The same way उसी तरह से we are also now living in Christ. हम भी यीशु में ही जीते हैं इस समय में। So the death can't control over us. जो मौत है उसका हम पे कोई अधिकार नहीं रहा। The death can't stop us in anywhere. और जो वो मौत है वो हमें कहीं पे भी जाने से रोक नहीं सकती So the है। resurrection power is going to help you today. आज वो जी उठने की सामर्थ आप में से हर किसी की मदद करने जा रही है। So turn your Bible, आए अपनी बाइबल को खोलें। Acts chapter 2, प्रेरितों के काम उसका 2 verse 24. उसका 24। So this word of God is very powerful word of God, having a lots of revelation inside. बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का वचन है जिसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकाशन दिया गया है। So you have to understand the truth. आपको इस सच को जानना है। So then in your life the truth will work. और तब ये सच आपके जीवन में काम करेगा। Because God is the truth. क्योंकि परमेश्वर वो सच्चाई है। How much more you are knowing the truth, जितना ज्यादा आप उस सच को you are जानेंगे, receiving the truth, उस सच को अपने जीवन में लेंगे, you will receive a deliverance. आपका छुटकारा उतना ज्यादा ही होगा। This word of God says, और ये वचन कहता है God destroyed the cords of death and raised Jesus up. और इसमें लिखा है परमेश्वर ने उस मौत की बेड़ियों को तोड़ दिया और यीशु को जी उठाया। There was a cords bounded the body of Jesus Christ. ऐसे एक बंधन थे जो यीशु के इर्द गिर्द उसके शरीर पे बांधे गए थे। That was the cords of death. और वो ऐसे बंधन थे जो मृत्यु की वो बेड़ियां थी। So that may be one kind of a fear in your life. हो सकता है इस तरह का कोई डर आपके जीवन में हो। That may be the cords of fear. हो सकता है कि वो डर की बेड़ियां हो। That may be the cords of sickness. हो सकता है वो बीमारी की बेड़ियां हो। That may be the cords of some kind of the problems. ऐसी कोई परेशानी की बेड़ियां हो आपके So जीवन today में। you believe आज आप विश्वास करें। the Almighty वो God, परम पिता, He destroyed the cords of death of Jesus Christ उसने यीशु की उस मौत की बेड़ियों का नाश कर दिया and set Jesus free. और यीशु को आजादी दी। The same way, उसी तरह He is से going to help me. वो आपकी मदद He करेगा। is going to help वो मेरी me. मदद करेगा। Hereafter no more spirit of fear. आपको कोई भी डर की आत्मा नहीं Hereafter सताएगी। no more spirit of worries. आप कोई परेशानी की आत्माओं में ना जिएंगे। Hereafter no more unwanted disturbance in your और life. बेकार की परेशानियां आपके जीवन में परेशान ना कर सकेंगी। All the bondages bound the body of Jesus Christ, God destroyed all the cords. Everything is set free. और हर वो बंधन जो यीशु के शरीर के इर्द गिर्द बांधा गया था, परमेश्वर ने उस बंधनों को तोड़ दिया और यीशु को आजादी दी। So you believe. आपको विश्वास All करना the है। cords of death are broken in my हर life. मौत की बेड़ियां मेरे जीवन से तोड़ दी गई All हैं। the negativity, depression broken in my मेरे life. जीवन से निराशा और नीचे देखने की आत्मा तोड़ दी गई है। All the sickness, everything, all the bondages are destroyed by the resurrection power of Jesus हर Christ. बीमारी की आत्मा और मुझे नाश करने की आत्मा परमेश्वर की सामर्थ से वो नाश कर दी गई है।
all the cords are broken. हर वो बंधन तोड़ दिया गया So in है। the life of Lazarus, इस तरह से हम लाजरस की जीवन को देखते God हैं। raised him after 4 days. यीशु ने उसे 4 दिन मुर्दों के बाद मुर्दों से जी उठाया था। Lazarus came out of the tomb, और लाजरस भी उस टूम से बाहर आ गया था, but Lazarus still bounded. पर वो फिर भी बंधनों में था। So what Jesus said to him, पर यीशु ने क्या कहा था उस समय? Jesus said to the people nearby, जो उसके पास जो लोग खड़े थे, यीशु ने उनसे कहा, so he want to, his all the cords bounded, the death cloths, Lazarus should be removed. उन्होंने उन लोगों से कहा कि यीशु जो लाजरत के ऊपर जो मृत्यु के जो कपड़े हैं उन्हें खोल दो, उसके बंधनों को खोल दो। So because these bondages should be destroyed. क्योंकि ये जो बंधन है उनका नाश किया गया है। So the Lazarus life there was a bondage of death. क्योंकि लाजरत के जीवन में वो एक मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ था। God raised him. परमेश्वर ने उसे जीवित किया। All the cords of the death are destroyed. उसके वो बंधन जो मृत्यु के थे परमेश्वर की ओर से उनका नाश किया गया। This is the power of the और resurrection. यही वो सामर्थ है जो जी उठाने की So सामर्थ if है। you believe, अगर आप विश्वास करते हैं, whatever may be the cords bounded in your home, कोई भी बंधन जो आपके घर को बांधे हुए है, in your children's life, आपके बच्चों के जीवन में, so in your spiritual life, आपके आत्मा के जीवन में, you may go through the debts problem. हो सकता है आप कर्जे में से होके जा रहे You हो, may go through the no happiness in your हो life. सकता है आप ना खुशी में जी रहे हो, Something is bounded you. कुछ ने तो आपको बांधा जरूर Today the है। Lord is going to send the resurrection power over you. आज परमेश्वर वो जी उठने की सामर्थ आप में से हर किसी के जीवन में भेजने जा There रहा is a है। deliverance. आज वो छुटकारे का दिन Deliverance. है। आज वो छुटकारे का Now दिन itself. है। अभी से ही हो The रहा word है। of God is touching you. परमेश्वर का वचन आपको छू रहा है। All the bondages are और वो destroyed. बंधन टूट रहे हैं। Destroyed. टूट रहे हैं वो। उनका Destroyed. नाश हो रहा है। All the cords of death are और वो मौत के destroyed. बंधन टूट रहे The हैं। resurrection power is coming upon वो जी you. उठने की सामर्थ आप में से हर किसी के Resurrection ऊपर power उतर is रही filling है। you. वो आपको भर रही है। Filling आपको भर रही you. है। Everyone आप इसे receive. ले लीजिए। उसे ले Receive. लीजिए। अपना मुंह खोल Receive. के मांगे The Lord भर दे is, परमेश्वर। all the bondages are destroyed today. और- All the sicknesses of bondages are बीमारी की destroyed. सिकनेस आपके ऊपर से तोड़ दी गई है। All the cords of death are destroyed by the resurrection power. हर वो बंधन जो मृत्यु का था उस जी उठने की सामर्थ की वजह से उसका नाश हुआ है सदा के लिए। हालेलुया। So today onwards you are going to be grow. आज से आप बढ़ेंगे परमेश्वर में। You will enjoy your miracle. आप अपने चमत्कारों को आनंद मनाएंगे। So today is the day of the celebration. और आज का दिन खुशियां मनाने का दिन Today is the है। day of the celebration. आज का दिन खुशियां मनाने का Let दिन us है। celebrate the victory of the आए Lord. परमेश्वर की उस विजय को हम सब मनाएं। Let us celebrate the victory of the Lord. परमेश्वर की उस विजय को हम सब मनाएं। Because all the cords of the death are क्योंकि destroyed. सारे ही मृत्यु के बंधन तोड़ दिए गए हैं। So this word of God clearly और यही says. ये वचन साफ साफ कहता है। All the time remember this word. हमेशा इस वचन को याद Acts रखें। 2:24. प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 24। The next part of this word says, अगला हिस्सा इस आयत का कहता है because it was impossible for death's power to hold Jesus as a prisoner. क्योंकि ये मृत्यु के लिए नामुमकिन था कि परमेश्वर यीशु मसीह को वो उसमें जकड़ के रख सके। So two blessings. 2 आशीषें। Number one, पहली, the Almighty God परमेश्वर sent His परमपिता resurrection power. उसने अपनी जी उठने की सामर्थ को All the भेजा। cords bounded the body of Jesus Christ destroyed. जो बंधन मृत्यु के यीशु को बांधे हुए थे उनका नाश हुआ। Another blessing, और दूसरी आशीष, the death power. जो मृत्यु की जो सामर्थ है, The death had a thought, जो मृत्यु है उसने ये सोचा I can put Jesus as a prisoner. मैं यीशु को उस बंधनों में एक बंदी बना दूंगा। But the word of God says, पर वचन कहता the है resurrection power came. वो जी उठने की सामर्थ आई The death power can't able to hold Jesus as a prisoner. और मृत्यु की सामर्थ यीशु को बंदी गृह में ना रोक सकी। So in the same way, इसी तरह से in your life also, आपके जीवनों में भी something you are feel like a prisoner, कहीं आप बंधन को
अपने आप को कहीं जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। Sometimes the unwanted thinking and thought is holding you as a prisoner. कई बार बेविचार के विचार आपको सोचते हैं, आपको लगता है कहीं तो मुझे जीवन में रुकावट है, No peace. कोई शांति नहीं। All the time you are feeling something not happy. हर समय आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं खुश नहीं। Something is putting you as a prisoner. कुछ तो है जो मुझे बंधनों में, एक बंदी गृह में डाल देता है। That is the evil power. वो शैतान की समर्थ है। That is the evil वो power. शैतान की समर्थ But है। today is the day. पर आज वो दिन है। All the power of the evil and the death can't hold you as a prisoner anymore. हर वो शैतान की ताकत और दुष्ट आत्माओं की ताकत आपको उस बंदी गृह में अब और नहीं रोक सकती है। You are no more a prisoner. आप उस बंदी गृह में नहीं You होंगे। have to confess. आपको अपने मुंह से बोलना होगा। Jesus set me free. यीशु ने मुझे आजादी दी है। Jesus set me यीशु ने free. मुझे आजादी दी No है। more death power can hold me as a कोई भी prisoner. मृत्यु की समर्थ अब मुझे बंदी गृह में नहीं रोक सकती I am है। no more a slave for अब मैं anything. किसी का दास नहीं हूँ। All the addictions are destroyed by the resurrection हर power. एडिक्शन की आत्मा का नाश हुआ है परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ के द्वारा। All the sinful addictions are हर वो destroyed. पाप के जो एडिक्शन लोगों के जीवन में काम करते हैं उनका आज नाश हुआ है। Jesus set me free. यीशु ने मुझे आजादी दी। I am going to grow in my spiritual मैं अपनी life. आत्मा के जीवन में और बढ़ूंगा। I am going to see the resurrected Savior Jesus face to मैं face. अपने उस जी उठने वाले यीशु मसीह को अपने चेहरे के आमने सामने देखने जा रहा I हूँ। am going to see Jesus मैं today. यीशु को देखने जा रहा हूँ। I am going to see Jesus मैं यीशु को today. देखने जा The रहा हूँ। resurrected वो जी Jesus. उठने वाला He is, यीशु he is in वो मेरे me. अंदर है। He is living in my वो मेरे heart दिल में रहता है। as a hope of glory. वो उम्मीद की वो खुशियाँ। I am having a strong hope today. आज मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। I am having a very powerful hope मुझे today. बहुत ही सामर्थी उस उम्मीद पे हूँ मैं। Jesus is alive. क्योंकि यीशु जीवित है। Because Jesus क्योंकि lives. यीशु जिया। I can face tomorrow. मैं अपने कल का सामना कर I सकता can हूँ। face मैं अपने tomorrow. कल का सामना कर The सकता हूँ। sinful addiction can't hold me पाप anymore. मुझ पे और अधिकार नहीं कर सकता है। Evil power can't hold me वो anymore. दुष्ट आत्माएं मुझे और नहीं रोक सकती I है। am no more a और slave. मैं किसी का बंदी I नहीं am हूँ। no more a मैं prisoner. उस बंदी गृह में भी नहीं The हूँ। death power can't control me वो anymore. मृत्यु के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। Because of the resurrection power of Jesus क्योंकि Christ. यीशु के जी उठने की सामर्थ के द्वारा। Because of the resurrection power of Jesus क्योंकि Christ. यीशु के जी उठने की उस सामर्थ के द्वारा। So dear friends, today God is blessed you. प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर ने आप में से हर किसी को आशीषित किया Believe है। your miracle. अपने चमत्कार के ऊपर विश्वास करें। All the sicknesses are gone. आपके जीवन से बीमारियां जा रही हैं। All the sicknesses are gone. बीमारियां जा रही हैं। All the sicknesses are gone. बीमारियां जा रही By हैं। the resurrection क्योंकि power. परमेश्वर की जी उठने By की the सामर्थ, resurrection उस जी उठने power. की सामर्थ By के the द्वारा, resurrection जी उठने की power. सामर्थ के द्वारा Believe and receive your miracle अपने now. चमत्कार पे विश्वास करें और उसे ले ले अपने जीवन में। Believe and receive your healing विश्वास now. करके अपनी चंगाई को ले ले अपने जीवन में। Believe and receive your deliverance अपने उस now. छुटकारे को विश्वास के साथ अपने जीवन में ले लें। You are set free. आज आप आजादी पाके जा You रहे are set हैं। free. आज आप आजादी पाके जा रहे Jesus हैं। is क्योंकि alive. यीशु जीवित है। Jesus is यीशु जीवित alive. है। He will live वो forever. जिएगा सदा के लिए। He will live वो forever. सदा ही जिएगा। Dear friends, प्रिय मित्रों, the Bible says वचन कहता है Jesus Christ, यीशु मसीह so he gave his spirit in the hand of his Father. उसने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंपा। So Jesus immediately raised from the dead. उसी समय यीशु उस मृत्यु से जी उठा था। Bible says, वचन कहता है 1 Peter पहला पत्रस chapter 3 उसका 3 verse 18 to 22. उसका 18 से 22 तक हम पढ़ेंगे। So everybody you turn your Bible हर कोई अपनी बाइबल को खोले। because you should know this word. आपको ये वचन पता होना चाहिए। So you should know very deeply to know this word. आपको बहुत गहराई से इस वचन को समझना This होगा। word clearly says ये वचन साफ साफ कहता 1 है। Peter 3 18 to 22. पहला पत्रस 3 उसका 18 से 22 18 says, और यहाँ पे कहता है मसीह Christ suffered for our sin once for all time. यीशु हमारे लिए ही एक बार सदा के लिए उसने सारे दुखों को उठा लिया। Jesus never sinned, यीशु ने कोई पाप नहीं किया but था। he died for us because of our sin.
क्योंकि उसने उस मौत को लिया हमारे लिए, ताकि क्योंकि हम उस पाप से आजादी पा सके। Yes, we have to receive the salvation and we should become the heavenly citizen. ताकि हम उस उद्धार को ले सके और उस स्वर्ग के अधिकारी हो सके, वहां के सिटीजन हो सके। So he suffered physical death, उसने इस शारीरिक मृत्यु को लिया, but the Lord Almighty God was raised Jesus from the death to life. पर परम पिता ने उसे उस मृत्यु से सदा के लिए जीवन में जी Jesus उठाया। is risen from the dead. यीशु मृत्यु से जी उठा, So what he did? और उसने क्या किया? He gave up his life on the cross. उसने अपने जीवन को उस क्रूस पे त्यागा Then था। what happened? फिर क्या हुआ? Verse 19. उसका 1 पत्रस 3:19 कहता So the है, resurrected Jesus went where? You should know this. आपको पता होना चाहिए जो जी उठने वाला यीशु है वो कहाँ गया था So पहले? Jesus never stored up in the tomb. वो यीशु उस कब्र में नहीं रह गया था। He immediately he gave his life on the cross. उसने अपना जीवन उस क्रूस पे परमेश्वर के हाथों में दिया था, Then he went and preached to the spirits in prison. और फिर उसी समय जाकर उसने कैदी आत्माओं का सुसमाचार का प्रचार किया। You should know this. आपको ये पता होना चाहिए, Because Jesus can't stored in the tomb क्योंकि anymore. यीशु वो ऐसा नहीं था जिसे उस कब्र में हम रोक सकें, So he can't wait for the 3 days to rise up. और वो 3 दिन वो इंतजार भी नहीं कर सकता था कि मैं तब जी उठूंगा। Of course, he shown himself to the people after the 3rd day. ये सच है कि 3 दिन बाद उसने अपने आप को लोगों पे प्रकट किया था, Before that also he alive. पर उससे पहले वो आत्मा में तो जीवित ही था। That's why this word of God और says. यही ये वचन कहता है, He went and preached to the spirit in prison. वो गया और कैदियों को उन बंदी गृहों में सुसमाचार को सुनाया। Verse 20. और 20 कहता Those है, who disobeyed God long ago, when God waited patiently while Noah was built his boat. और उन लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना था, जब नोहा परमेश्वर का प्रचार करता था और उस आग को बनाता था, उस बड़ी नाव को बनाता था, The people, those who are not enter into the boat, the salvation, Jesus went and preached them, Bible says. वो लोग जिन्होंने उस समय नोहा की बात पे यकीन नहीं किया था, यीशु गया और उन लोगों को सुसमाचार सुनाया। So then verse 21. और उसका 21 कहता है, The water sent during the time of the Noah, that is the picture of baptism. जो नोहा के समय में जो पानी 40 दिन 40 रात बरसाया गया था, वो बपतिस्मे की एक पिक्चर है, So which now saves you, जो इस समय आपको बचाती है। not by removing the dirt from your body, ये नहीं कि आपके शरीर की वो गंदगी को साफ करती but है, as a response to God from the clean conscience inside your heart. पर वो परमेश्वर की ओर हम अपने आप को दर्शाते हैं कि हाँ, अपनी समझ से हम इस बपतिस्मे को लेते हैं। So what is the baptism? और बपतिस्मा क्या है? We are died with Christ. हम यीशु के साथ मर गए, That's why we are going inside the water. और इसीलिए बपतिस्मे के समय हम पानी के अंदर जाते हैं, Then we are coming up और फिर जब हम ऊपर आते हैं, with the resurrection of Jesus वो Christ. यीशु के जी उठने की With सामर्थ the के द्वारा, resurrection of Jesus Christ. यीशु के जी उठने की सामर्थ के So this is द्वारा, the meaning of the baptism. और यही बपतिस्मे का मतलब है। So the resurrection power of Jesus Christ will give you new life. और यीशु के वो बपतिस्मा आपको एक नया जीवन देता है। Verse 22. उसकी 22 कहती है, Now Christ has gone to heaven और अब जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग चला गया and है, he is seated in the place of honor next to God. और वो परमपिता के अगले जगह ही बैठा है, क्योंकि उसे वो सम्मान दिया गया है, And all the angels and the authorities and powers accept his authority. और सारे स्वर्गदूत अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन हो गए हैं, Through the resurrection, क्योंकि जी उठने की सामर्थ के Jesus Christ द्वारा received the authority and power. यीशु ने वो अधिकार और वो सामर्थ को ले लिया है। Since we are also raised with Jesus, क्योंकि हम भी यीशु के साथ ही जी उठे हैं, so we are also receiving the authority and power. और इसलिए हमें भी वो अधिकार और वो सामर्थ दी गई है। Where is the authority and power? कहाँ है वो अधिकार और सामर्थ? So Revelation chapter 2, और प्रकाशित वाक्य उसका 2, verse 26 to 28. उसका 26 से उसका 28। So here it's talk about the power and authority. और यहाँ पे बात करते हैं उस अधिकार की और उस सामर्थ की। So Jesus Christ received the power and authority from the heavenly Father. और यीशु मसीह ने वो सामर्थ और अधिकार अपने परम पिता से स्वर्ग से लिया। The same way, उसी तरह से we are also receiving the power and authority. हमें भी वही अधिकार और सामर्थ दिया गया The है। resurrection power
वो जी उठने की सामर्थ, Give us the power and authority in the heavenly realm. वो हमें अधिकार देता है आत्मा के अंदर सामर्थ का और उस अधिकार का। That's why Romans 8:11 says, इसलिए रोमियो 8:11 कहता है, Romans 8:11, रोमियो 8:11 the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. वो आत्मा जिसे यीशु को जी उठाया वो आपके अंदर जीती है। And just as God raised Christ from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. और जैसे परमेश्वर ने यीशु के जी उठाया वैसे ही आपके इस नाश होने वाले शरीर को भी एक दिन वो जी उठाएगा अपने जी उठने की सामर्थ से। So the resurrection power already opened the heavenly realms for you. और इसका मतलब है कि जो जी उठने की जो सामर्थ है स्वर्ग में उन जगहों को आप लोगों के लिए उसने खोल दिया है। So in this world, और इस वचन के इस संसार में two type of forces working. दो तरीके की सामर्थ्य काम करती हैं। One is the evil spirit, एक है वो दुष्ट आत्माओं की, that is the worldly spirit, जो संसार की है, all the time put you down, हर समय आपको नीचा दिखाना चाहती like है, the gravity force. जैसे कि कोई आपको नीचे ही खींचता रहता So है। you can't do anything against the gravity force. और जब कुछ नीचे गिराया जाता है उसके खिलाफ में हम कुछ भी सामर्थ को नहीं लगा How सकते। much you want to go up? कितना भी आप ऊपर उठना चाहें, So the gravity force will pull you down. वो जो नीचे खींचने की वो ताकत है आपको नीचे ही गिराती रहती है। How many of you are understanding this? आप कितना इसको समझ रहे So हैं? this is the evil spirit, और यही वो दुष्ट आत्माएं हैं, the worldly spirit, जो संसार की आत्माएं हैं, want to put you down all the time. वो हर समय आपको खींच के नीचे गिराना All the चाहती हैं। time pull your legs down. आपकी टांगों को खींचती रहती है कि आप गिर जाओ। Another spirit, और एक और आत्मा है, that is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। He want to all the time pull you वो up. हर समय आपको ऊंचा उठाना चाहती है, All the time raise you हर up. समय आपको जी उठाना चाहती So है। that is the resurrection और power. वो ही जी उठने की सामर्थ है। So now the resurrection power want to work in your life. और अब वो जी उठने की सामर्थ आप में से हर किसी के जीवन में काम करना चाहती है। So the small stone, और एक छोटा पत्थर if you throw it in the air, अगर आप उसे हवा में उछालते हैं it will automatically fall down. अपने आप वो नीचे आ जाता है। But the very big, huge aeroplane, अच्छा, जैसे एक बहुत बड़ा एक हवाई जहाज जैसे नीचे गिरता है, very weight, more weight, we can't make such a weight, such a huge flight. इतना मतलब बड़ा प्लेन जिसमें बहुत ही वजन होता है वो अपने आप ऐसे With ऐसा वो with पत्थर आ जाता all the passenger luggages. है। जितने भी लोग उसमें बैठे हैं और जितना भी उनका सामान उसमें है सबके साथ वो नीचे आ जाता Once है। the engine started, और एक बार जब वो इंजन उसका शुरू होता है the flight used to go against the gravitational और force. जो वो प्लेन है उड़ चलता है, जो नीचे खींचने की सामर्थ है उसके अगेंस्ट में मतलब उसके विपरीत में। This is the resurrection power. और यही वो जी उठने की सामर्थ This is है, the resurrection यही power. वो जी उठने की The सामर्थ है। worldly spirit will put you down. संसार की आत्माएं आपको नीचे The खींचेंगी resurrection power will come and raise you और जी up. उठने की सामर्थ आएगी, आपको जी उठा ले जाएगी You will और fly. आप उड़ने लगेंगे। You will taken up into the third heaven और experience. आप में से बहुत से लोग वो तीसरे स्वर्ग का मतलब उसको मनाएंगे और उसको देखेंगे, दर्शनों को देखेंगे। That is the God's और plan. यही परमेश्वर का वो प्लान है आपके लिए। Resurrection power will raise you up. वो जी उठने की सामर्थ आपको जी उठाएगी। Even while you are living in this earth itself, जब भी इस समय में भी जब आप इस धरती पे जीते हैं, you can enjoy the heavenly blessing. आप वो स्वर्गीय आशीषों को यहाँ पे मना सकते हैं। You can enjoy आप Jesus. यीशु को मना सकते हैं। Your यहाँ home पे। is going to be changed as a heavenly blessed home. आपका घर वो स्वर्गीय घर के जैसे आनंदित हो जाएगा। Inside your home, आपके घर के अंदर all of you will filled with the Holy Spirit. जब हर कोई पवित्र आत्मा से भरा होगा, Your husband filled with the Holy Spirit. आपका पति मतलब हस्बैंड पवित्र आत्मा से भरा होगा Wife filled with the Holy और Spirit. वाइफ पवित्र आत्मा से भरी होंगी, Children filled with the Holy Spirit. छोटे छोटे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे होंगे Your home is filled with the heavenly blessing. और आपका घर वो स्वर्गीय आशीषों से भरा The होगा। heaven is come down and inside your
home. तो वो स्वर्ग उतर आएगा और आपके घर के अंदर वो रहने लगेगा। Luke 17:21. लूका उसका 17 उसका 21। Already the heaven is inside you. और इस समय वो स्वर्ग आप ही के अंदर में This है। Luke 17:21 says, लूका 17 उसका 21 कहता है, the kingdom of heaven is inside स्वर्ग के you. राज्य मेरे अंदर है, Inside your home. आपके घरों के अंदर है, Inside your heart. आपके दिलों के अंदर है। That is the resurrection power. और यही वो जी उठने की Now सामर्थ है। Jesus is in you. अब यीशु आपके अंदर है। Colossians 1:27. कोलोसियो 1 उसका 21 27. उसका 27 Bible says, बाइबल कहती है, Jesus Christ is living in our heart as a hope of glory. यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर जीता है उस उम्मीद के लिए। He is living as a hope of वो glory. उस महिमा की उम्मीद के रूप में हमारे अंदर जीता है। You can raise up. आप जी उठेंगे, No more falling आप down. नीचे नहीं गिरना है, No more आप कोई negativity. निराशा नहीं, No more the old fashioned, the old past problematic life in your और life. वो पुराना जीवन जो परेशानियों भरा था अब से आपके जीवन में नहीं होगा। You are no more under the law of the Spirit. आप उस कानून के अंदर नहीं जहाँ पे पाप है। Resurrection power resurrected यीशु you. की जी उठने की सामर्थ्य ने आपको उठा दिया है। Romans 8:2. रोमियो 8 उसका 2 This is very powerful ये word. बहुत ही सामर्थी वचन Romans है। 8:2. रोमियो उसका 8:2 Bible says, वचन कहता है, the law of the Spirit of life in Christ made you free from the law of the sin and death. जिस मृत्यु ने आपको जकड़ा था उस लॉ के द्वारा आज परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य ने आपको उसी से आजादी दे दी है। Yes, you are delivered from the law of sin and death today. और आज आप उस कानून से जहाँ पे आप पाप के द्वारा उसके भागीदार थे, जो परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य ने आपको उससे छुटकारा दिया है। So you are delivered from the law of sin today. और आज आप उस पाप के अधिकार से उस कानून से आजादी पाई है Believe you आपने। are delivered from the law of the death today. और उस मौत के अधिकार से भी आपने आजादी पाई है। Because now you are under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. क्योंकि अब हम परमेश्वर की उस प्यार की आत्मा के अंदर जीते हैं। That is the resurrection power. और यही वो जी उठने की सामर्थ है। Another one word very clearly says, एक और वचन साफ साफ कहता it है, is giving the detail for the resurrection power of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में ये और साफ से बताता है। John 6:63. यूहन्ना 6 उसका 63। Yes, John 6:63. यूहन्ना 6 उसका 63। Here the Bible says, और यहाँ पे वचन कहता the है, Spirit alone gives eternal life. वो आत्मा ही जो है जो आपको अनंत काल का जीवन The देती है। resurrection power give you the eternal life. वो जी उठने की सामर्थ्य ही आपको वो अनंत काल का जीवन देती है। The human effort in flesh accomplishes nothing. जो आप शरीर में होके कितनी भी कोशिश करें पर आप कुछ नहीं पा सकते हैं। And the very words I have spoken to you are spirit and life. यीशु कहता है जो शब्द मैंने तुमसे बोले हैं वो आत्मा है और वो ही जीवन है। So inside your body, two people are there. आपके शरीर के अंदर 2 लोग हैं। How many of you know that? कितने लोगों को ये पता है? One is your body एक आपका शरीर in your control. आपके कब्जे में है, The another is और दूसरा soul, आपकी वो आत्मा inner man. जो आपके अंदर का जो मनुष्य है। Sometimes the inner man used to speak. और कई बार वो अंदर का मनुष्य आपसे बात करता है। Whenever you are going to do some sin, और जब कुछ पाप करने जा रहे the होते हैं inner man says, वो अंदर का आदमी आपसे कहता है don't do, मत करना, don't do this. ऐसा मत करना, This is a sin. और ये पाप है, You should not do. तुम ऐसा नहीं करना। You will hear it inside. आपको ये पता चलता है कि वो मुझसे बोल रहा है। That is a soul given by God. और वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई If है। we did sin against God, अगर हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते the हैं soul will die. वो आत्मा मर जाती है The soul will come down. और वो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। But whenever you are reading more Bible and growing in the Lord, और जब आप ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर में बढ़ते हैं, your inner man will strong. जो आपका अंदर का आदमी है वो और भी ताकतवर और मजबूत So हो the जाता है। resurrection power और इसी तरह जी उठने की will सामर्थ make your inner man strong. आपके अंदर के मनुष्यत्व को वो बहुत ही सामर्थी बनाता है। Whenever your inner man is getting stronger, जब आपका अंदर का मनुष्य और भी मजबूत
मजबूत होता चला जाता है, the word of God will become a spirit and life in your life. तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर आत्मा और वो जीवन बन जाता है. So हालेलुया. what is this spirit and life? और वो आत्मा और जीवन क्या है? The aeroplane engine, there will be a kind of a new type of the petrol. और एरोप्लेन के जो इंजन होता है उसमें एक खास तरीके का एक पेट्रोल इस्तेमाल होता है. So that petrol only make the engine very speed to resist the gravitational force. और वो पेट्रोल ही है जो उस इंजन को इतनी स्पीड देता है कि जब वो उड़ता है उस ग्रेविटी के खिलाफ में हवा में, The same way उसी तरह से in your life, आपके जीवन the में word of God, परमेश्वर का the वचन, word of God, परमेश्वर का it is the वचन, living word of ये God. जीवित परमेश्वर का This वचन word है. of God is spoken by the resurrected Savior Jesus ये Christ. परमेश्वर का वचन बोला गया है वो जी उठे यीशु के द्वारा, This word of God spoken by Jesus is spirit and और life. यीशु के द्वारा ही ये आत्मा और जीवन आपके लिए बोला गया है. So whenever you are increasing more strong in your spiritual और life, जब हम आत्मा के जीवन में और बढ़ते चले जाते the हैं spirit and life will take you up और वो आत्मा आपको ऊंचा उठा लेती है in the heavenly realms. और वो स्वर्गीय स्थानों पे ले चलती है. Ephesians 1:3. इफिसियों 1:3. We are blessed with the blessings in the heavenly realms. हम उस तरह से आशीषित है जो स्वर्गीय आशीषें हैं. Ephesians chapter 2 इफिसियों 2 verse 4 to 6. उसका 4 से 6 This is very powerful word of God. बहुत ही सामर्थी परमेश्वर का वचन है. Everybody note this word of हर God. कोई से लिख लिए. Ephesians chapter 2 इफिसियों 2 verse 4 to 6. उसका 4 से 6. This word of God और says, ये वचन कहता है God is so rich in mercy, परमेश्वर इतना ही दयालु है उस दया के अंदर, He loved you so much. वो आपको इतना ज्यादा प्यार करता Verse है. 5, उसका 5 कहता that है even though we were dead because of our sin, क्योंकि हम अपने पाप के कारण मर ही गए थे He gave us life when He raised Christ from the dead. और उसने हमें भी वो जीवन दिया जब उसने यीशु को मुर्दों से जी उठाया. This is the resurrection power. और यही वो जी उठने की सामर्थ है. We are received the life from Jesus Christ. हमें वो जीवन यीशु के द्वारा ही मिला है. Verse 6. उसका 6. And Jesus raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms. और मसीह यीशु को उसके साथ उठाया और जो स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ ही बैठाया है. Because we are united with Christ Jesus. क्योंकि हम यीशु से जुड़े हुए हैं. So we are no more living in the worldly things. तो अब हम संसार में नहीं जीते हैं. We are living every day with the Holy Spirit in the heavenly और realm. पवित्र आत्मा के साथ हम स्वर्गीय स्थानों पे जीते हैं. Along with जहाँ पे Jesus. यीशु है उसी के साथ. He put us next to Him, seated with Him in heaven. उसने हमें अपने आप को उसके साथ ही हेवन में बिठाया है. So this experience, how you will receive? और इस अनुभव को आप अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं? So according to 2 Corinthians chapter 12, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 verse 1 to 5. उसका 1 से 5. You go home and read this word of God. दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 1 से 5 आप घर में Here जाके Apostle पढ़ना. Paul, he is saying, और यहाँ पे पौलुस कहता है he is taken up into the third heaven. वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था. The Spirit of God taken him into the paradise. पवित्र आत्मा ही उसे उस पैराडाइज में लेके गई. So how it is happened? तो ये कैसे हुआ था? It is because of the Spirit and the life. और ये हुआ उस आत्मा और उस जीवन के द्वारा. The word of God is the Spirit and life. परमेश्वर का ही वचन वो आत्मा और जीवन है. Hebrew 4:12. इब्रानियों उसका 4:12. The word of God is active and alive. परमेश्वर का वचन जीवित है वो काम करता है. So what the resurrection power will do in your life? तो वो जी उठने की सामर्थ आपके जीवन में क्या करेगी? You will keep on read more the word of God inside your heart and mind. और आप और भी ज्यादा परमेश्वर के वचन को दिल दिमाग में दोहराते रहेंगे. Whenever the Spirit and life will increase in your life, और जब वो जीवन और वो आत्मा आपके जीवन में बढ़ेगा. so whenever you are praying more in the Spirit, और जब आप आत्मा में और ज्यादा प्रार्थना करेंगे you are praying more in the heavenly language, और आप और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे the Spirit and life inside your body will take you up. और वो आत्मा और वो जीवन आपको ऊपर उठा लेगा. You will be seated in the heavenly realms with Christ Jesus. और फिर आप अपने आप को यीशु के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ पाएंगे. It is written in the word of ये God. वचन में ही लिखा है. You should know this. आपको पता होना The चाहिए. resurrection power is not simply say
happy resurrection day, not like this. जी उठने की सामर्थ्य एक ऐसा दिन नहीं जहां हम एक दूसरे को बोलते रहे कि हैप्पी रिजरेक्शन डे। You have to enjoy the reality in your life. आपको उस सच को अपने जीवन में मनाना है। Verse Ephesians 2:6 is very important verse. इफिसियों 2:6 उसका खास वचन है। You have to say like आपको this. ऐसा कहना है, The resurrection power of Jesus जी उठने की सामर्थ्य यीशु की raised me up from the मुझे dead. भी मृत्यु से जी उठाया है, And now I am seated with Christ in the heavenly realm. और अब मैं यीशु के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। Now you are seated with Christ in the heavenly realm. अपने आप को स्वर्ग के उन स्थानों में बैठा हुआ देखें आत्मा में। So if you are living like this, अगर आप वैसा जीवन जीते हैं how the worldly sin will come? तो जब आप ऊपर हैं तो संसार का पाप आपको छू नहीं How you सकता। inside your mind you will have some confusion. आपके दिल दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। Your home will be blessed आपका home. घर आशीष भरा होगा। In your home, आपके घरों के अंदर whenever you are praying as a family prayer, जब आप परिवार के रूप में एक प्रार्थना करते हैं, so every day before you go to bed, हर दिन सोने से पहले, the same way once you get up, all of your family members, और वैसे ही जब सारे परिवार के लोग सुबह उठ जाते you हैं, have to come together as a family, आपको इकट्ठा होकर परिवार के रूप में आना है। husband and wife, children, rest of the family members. जितने भी मतलब घर में हस्बैंड वाइफ बच्चे और भी जो लोग हैं, You have to read one passage, एक कुछ बाइबल का कुछ भाग पढ़ना you है have to sing one song, और एक गाना भी गाना है, then you have to give thanks unto the Lord. और फिर आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का। That is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है। It's not like that I am so busy, I can make like this, that is enough. No. नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बिजी हूँ और आप कुछ कुछ करें, आप सोचे कि हाँ चल रहा है, No. ऐसा नहीं। We have to give time to God. हमें परमेश्वर को उसका समय देना होगा। If any home there is no family prayer, अगर कोई भी ऐसा घर है जो परिवार के रूप में प्रार्थना नहीं करता है, there is no roof in that home. तो उस घर में छत नहीं होगी। If the no roof, अगर छत नहीं है what will be happen? तो आपको पता है क्या हो सकता है? Bats will come, पक्षी आ जाएंगे many things will come. और भी दूसरी चीजें आ जाएंगी। You may have very blessed home, हो सकता है बहुत आशीषित भरा घर हो, very nice bungalow, बहुत अच्छा बंगला हो very आपका, nice kind of ceiling. बहुत अच्छी उसकी मतलब जो ये दीवार है हो, If no prayer, अगर प्रार्थना नहीं है, if no family prayer, अगर परिवार के रूप में प्रार्थना नहीं है, if no time for Jesus, अगर यीशु के लिए ही समय नहीं if है, no time for the God who created you, अगर उस परमेश्वर के लिए ही आपके पास समय नहीं we are जिसने आपको we बनाया, are giving more importance for our worldly things more than अगर हम अपने संसार के कामों को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देते हैं, we have to give the priority to Jesus. हमें यीशु को ही अपनी अहमियत देनी है। Today onwards, आज से how many home you are not having the family prayer? जितने भी वो परिवार जो परिवार के रूप में प्रार्थना नहीं करते, You have to do the family prayer. आज से आप उसे शुरू करें। If somebody is not coming for the family prayer in your home, अगर कोई ऐसा जन आपका घर का उस परिवार की पारिवारिक प्रार्थना में नहीं आता है, don't fight with them. उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, Leave it. छोड़ दें, Pray for them. पर आप प्रार्थना में बैठ But जाएं। you, how many of you can come for prayer? You can pray continuously. और जो लोग आ जाते हैं प्रार्थना में, आप लगातार प्रार्थना में बने रहें। Finally, that person who is not ready to come, he will also come and join with you. और वो इंसान जो अभी तैयार नहीं है, धीरे धीरे वो आ जाएगा। So, dear तो friends, प्रिय मित्रों, if no prayer, अगर प्रार्थना नहीं, no roof, तो छत नहीं होगी, the evil spirit easily can come. वो दुष्ट आत्माएं आराम से आ जाएंगी, Then you will not read the Bible. क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते Then you हैं। will say, oh, I'm not interested to read the Bible. फिर आपका मन ऐसा कहेगा, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा You बाइबल will say, I पढ़ने में, can't able to pray. मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा I हूँ, can't able to grow my spiritual मैं life. अपनी आत्मा के जीवन में नहीं बढ़ पा रहा हूँ। Today make a roof as a prayer in your home. आज प्रार्थना की उस छत को अपने घरों में बना लीजिए, Without family prayer, पूरे परिवार की प्रार्थना के no साथ। protection, कोई आपके ऊपर प्रोटेक्शन no नहीं है। family prayer, अगर प्रार्थना परिवार की प्रार्थना no नहीं, roof, तो छत भी नहीं, no roof. कोई छत नहीं। You should understand this. आपको इस बात को समझना होगा। All the word of God is having a spirit and life. हर परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन लेके आता The है। resurrection power of Jesus वो Christ जी उठने की सामर्थ्य यीशु मसीह will की, give you more वो focus आपको और भी फोकस देगा in your spiritual आपकी life, आत्मा के जीवन में, in your Bible reading आपके time, बाइबल पढ़ने के समय in your में, personal prayer आपकी time. अपना प्रार्थना के समय
समय में You will grow. आप बढ़ चलेंगे, You will आप grow. बढ़ जाएंगे। Every day the resurrection power will come and fill you like a flight. You will go up to the heaven and seated with the Lord and receive the heavenly power and authority and come back and do the mighty things for God's glory. और हर दिन वो जी उठने की सामर्थ आपके पास आएगी और आपको ले जाएगी जैसे एक हवाई जहाज उड़ता है उस स्वर्गीय स्थानों में, और वहां से आप आशीषों को लेके अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। This is your prayer time. और यही आपका प्रार्थना का समय In होना your prayer चाहिए। time, जब आपका प्रार्थना का you समय will हो, go for prayer. प्रार्थना में जाएं। The presence of the Lord will fill वो you. परमेश्वर की मौजूदगी आपको भर देगी। You will start to pray in the आप Spirit. अपने आप ही अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगेंगे। Resurrection power will वो come. जी उठने की सामर्थ आ जाएगी, Resurrect you. आपको उठा लेगी, You will take an आप up. उठा लिए जाएंगे And you will be in the heavenly realm with Jesus. और अपने आप को आप उन स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ And देखेंगे receive the heavenly power and authority. और वो स्वर्गीय स्थानों की वो सामर्थ और अधिकार आप अपने जीवन में ले लेंगे And come back and live as a living testimony for Him. और वहां से यहाँ पे आके इस धरती पे यीशु के लिए एक जीवित गवाही होके जिए। This is the only blessing of the resurrection यही power. वो एक आशीष है जो जी उठने की आशीष है This is the only powerful experience you can have with the resurrection of Jesus और Christ. यही वो जी उठने की सामर्थ है जो आप में से हर कोई ले सकता है। How many of you need this experience? हर कौन है जो इस समय में ऐसे अनुभवों को How चाहता many of है? you want this? कितने लोग इस बात को चाहते You हैं? can close your eyes अपनी now. आंखों को बंद कर लीजिए। Now the resurrection power of Jesus Christ is coming upon वो जी you. उठने की यीशु की सामर्थ आप पे आ रही है। Now the power of the Holy Spirit is coming upon पवित्र you. आत्मा की सामर्थ आप पे आ रही है। Receive the resurrection वो जी power. उठने की सामर्थ को अपने जीवन Receive में the ले resurrection लें। power. वो जी उठने की सामर्थ को It अपने is जीवन में filling ले लें। वो आपको you. भर रही है। Filling भर रही you. है। Filling भर रही you. है। Everyone हर कोई उसे ले receive. ले। All the cords of the death are dead strong. वो मृत्यु के बंधन तोड़ दिए गए हैं। All the cords of the deaths are मृत्यु destroyed. के बंधन बेड़ियां आपसे तोड़ दी गई हैं। The death's power can't be able to put you as a prisoner वो anymore. मृत्यु की ताकत अब आपको बंदी गृह में नहीं रख सकती You है। are set free. आप आजादी पाए हुए You लोग are set हैं। free. आपने आजादी पाई Today है। onwards, the resurrection power of Jesus is going to help आज से ही you. वो जी उठने की यीशु की सामर्थ आप में से हर किसी के जीवन में काम करने जा Your रही है। spiritual life is going to be आपके grow. आत्मा का जीवन और बढ़ने जा रहा Your है। prayer life is going to be आपका grow. प्रार्थना का जीवन बढ़ने जा रहा है। Every home there is going to be a family हर prayer. परिवार में एक परिवार की प्रार्थना होनी चाहिए। Every home there is a resurrection power is going to be worked from today हर onwards. घर में आज परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ काम करेगी। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Amen.